Good morning everyone. So we are back with the mole concept. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੋਲ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮਸ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮਸ ਦੀ। ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲੀ? ਤਾਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, दैट इज नोन एज द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप की लिखांगे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो कंसंट्रेशन बेसिकली अपने कोले की हुंदा हैगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हुंदा है। गॉट इट? ठीक है, तो हुण इहदे च आपां सॉल्यूशन वर्ड का जिक्र कर रहे हैं। सॉल्यूशन की चीज़ हुंदी है राजे, जदों भी ਆਪਾਂ सॉल्यूशन की गल करांगे दैट मीनस ਉਹਦੇ ਚ दो कंपोनेंट्स ने। ठीक है, जनरली इट इज़ कॉल्ड अ बाइनरी सॉल्यूशन, बट जदों भी ਆਪਾਂ किसी जनरल सॉल्यूशन की गल करते हैं तो ਉਹਦਾ मतलब की हुंदा हैगा बाइनरी सॉल्यूशन ही हुंदा है। ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने कंपोनेंट्स हुंदे ने? दो कंपोनेंट्स हुंदे है। फर्स्ट कंपोनेंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ कहने ਹੁੰਦੇ ਆ? सॉल्यूट, ते सैकेंड कंपोनेंट ਨੂੰ ਕੀ कहने आ? सॉल्वेंट। ठीक है, तो फर्स्ट कंपोनेंट जो सॉल्यूट होंदा है बेसिकली इट इज़ प्रेजेंट इन द लैसर अमाउंट, एक घट मात्रा दे विच प्रेजेंट होंदा है। या फिर जे आप एग्जैक्ट डेफिनेशन दसनी होवे तो सॉल्यूट एक वो सबसटांस होंदा है जिन्हों किसी मीडियम दे विच डिसोल्व किया जाता है। गॉट इट? तो दिस इज द सॉल्यूट एंड दिस इज द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की चीज़ होगी? सॉल्वेंट इज द मीडियम ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਟ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਐਜ਼ ਦ B ਐਂਡ ਸੋਲਵੈਂਟ ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਐਜ਼ A। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ B ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ ਸੋਲਿਊਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਦ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਓਨਲੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ B ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੋਲਿਊਟ, ਤੇ A ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਸੋਲਵੈਂਟ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ दैट इज द मोलैरिटी। मोलैरिटी, तो मोलैरिटी जो है दैट इज द फर्स्ट कंसनट्रेशन टर्म। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। कैपिटल M दे नाल यह रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, हुण इहदी डेफिनेशन की हुंदी है? मोलैरिटी दी डेफिनेशन हुंदी है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड in per liter of solution is known as molarity। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ कहने आगे? molarity, that is capital M। clear? ਤਾਂ मैथमेटिकली ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ किस तरीके नाल रिप्रेजेंट करांगे? number of moles of solute divided by वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ हुण जे आह वॉल्यूम जिहड़ा हैगा वो आपां लीटर्स दे विच लै रहे हां तां अपने कोले फॉर्मूला जो है वो यही रहूगा। दैट मीनस इट विल बी इज इक्वल्स टू NB over volume of the solution in liters। this is the formula to calculate the molarity। क्लीयर? बट जे आप वॉल्यूम नू किस चीज़ दे विच लै रहे हैं? मिलीलीटर्स दे विच लै रहे हैं, तो इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय की हो जाऊगा ऊपर 1000 दे नाल। सो दिस इज द मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला फॉर टू कैलकुलेट द मोलैरिटी। मोलैरिटी नू कैलकुलेट करने वास्ते
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਲੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ 1000 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ 1000 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਮੋਲੈਰਿਟੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰ ਲੀਟਰ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦਿਸ ਪਰ ਲੀਟਰ? ਪਰ ਲੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ dissolved per liter of the solution. That means कि molarity will be equals to number of moles ਜਦੋਂ ਆਹ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 1 ਲੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਕਿ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਮੋਲੈਰਿਟੀ। अंडरस्टूड, ठीक है। सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी जिहड़ी हैगी वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सैकेंड कंसनट्रेशन टर्म जो है वो किहड़ी है? दैट इज द मोलैलिटी। नेक्स्ट कंसनट्रेशन टर्म इज द मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलैलिटी का मतलब की होया वो लिखते हैं। मोलैलिटी सिर्फ एल ते आर का फर्क है। मोलैरिटी दे विच इत्थे आर सीगा, मोलैलिटी दे विच इत्थे एल है, तो इनू आपां स्मॉल एम दे नाल रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जिथे भी किते स्मॉल एम लिखा होगा ओदा मतलब होगा मोलैलिटी, जिथे भी आर लिखा हो या कैपिटल एम लिखा होगा ओदा मतलब होगा मोलैरिटी। क्लियर। सो व्हाट इज द मोलैलिटी? मोलैलिटी की चीज हुंदी है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per kg यानी कि किलोग्राम of the solvent, पर kg of the solvent। क्लियर, ठीक है। तो जो आप सॉल्वेंट की गल करते हैं इत्थे ध्यान रखना है, दिस इज द बिट डिफरेंट डेफिनेशन। आप मोलैरिटी के केस की कीता सी, आप उत्थे लिखा सी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, बट नाउ इन दिस केस वी आर कंसिडरिंग द सॉल्वेंट। तो इत्थे आप वॉल्यूम भी नहीं लै रहे, इत्थे की लै रहे हैं? किलोग्राम यानी कि मास लै रहे हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकली मोलैलिटी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वेट ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि आप इत्थे वेट किहदे च कन्वर्ट करता? ग्राम दे विच। अगर तुसी किलोग्राम दे विच लैने हो तो मोलैलिटी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। दैट्स इट, दिस इज द ओनली फॉर्मूला। अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये अपने कोले हुंदी है मोलैलिटी। हुण तुहानूं पेपर दे विच एक क्वेश्चन पूछा जाऊगा राजे कि मोलैलिटी ते मोलैरिटी इन्हां दोनां दे विचों बैटर कंसनट्रेशन टर्म किहड़ी है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये हुंदा है विच इज the better concentration term to calculate the concentration basically, ठीक है। तो concentration term molarity is better और molality is better, तो we will say कि जो molality है, molality is the better concentration term, better कंसनट्रेशन टर्म। हुण इहदा रीजन की है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? मोलैलिटी जो है आपां की देख रहे हैं कि कंसनट्रेशन जो चीज़ हुंदी है कि किसी भी अमाउंट किसी भी सॉल्यूशन दे विच एक सॉल्यूट दी किन्नी अमाउंट प्रेजेंट है, किन्ना सॉल्यूशन गाढ़ा है, किन्ना पतला है, दैट इज नोन एज द कंसनट्रेशन। क्लियर, ठीक है। हुण आपां नूं की पुछया गया कि किहड़ी कंसनट्रेशन टर्म जिहड़ी हैगी आ वो ज़्यादा वधिया है। तो आपां की देखिया जिहड़ी मोलैरिटी है कैपिटल एम है उहदे च आपां वॉल्यूम का जिक्र किया, ते जिहड़ा स्मॉल एम है उहदे च आपां वेट का जिक्र किया या मास का जिक्र किया, है ना। तो जे मान लो आपां किसी भी कंडीशन नूं चेंज कर दिंदे आ, मान लो अपने कोले टैंपरेचर की कंडीशन चेंज होगी या प्रैशर की कंडीशन चेंज होगी तो उहदा कंसनट्रेशन के उत्ते की इफेक्ट पऊगा? पऊगा तो पऊ, है ना। तो ये तो डेफिनेट है भी टैंपरेचर के प्रैशर कंसनट्रेशन नूं अफेक्ट करते हैं, बट वैन वी आर डीलिंग विद द वॉल्यूम तो आपां नूं ये पता है कि जिहड़ा टैंपरेचर है वो वॉल्यूम नूं डायरैक्टली अफेक्ट करता है।
इस करके जे थोड़ा बहुत भी टैंपरेचर इधर उधर होंदा है तो मोलैरिटी की जिहड़ी वैल्यू है वो की हो जूगी, चेंज हो जूगी, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो जूगा। क्लीयर। लेकिन इन केस ऑफ मोलैलिटी वी आर डीलिंग विद द मास, आप मास दे नाल डील कर रहे हैं, तो मास एक यह जी फिजिकल क्वांटिटी है जिहड़ी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करन दे नाल चेंज नहीं होंदी। क्लीयर। तो मास नूं आपां कदे भी चेंज नहीं कर सकते, तो बाय चेंजिंग द कंडीशंस और वी कैन से बाय चेंजिंग द टैंपरेचर कंडीशन जिहड़ा मास है या मोलैलिटी दी वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। दैट इज वाई मोलैलिटी इज द बेटर टर्म टू फाइंड आउट द कंसनट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। क्लीयर। ठीक है। तो जो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। भुलेखा की पैंदा आपां नूं कि मोलैरिटी जिहड़ी हैगी है जिन्हों कैपिटल M नाल लिखते हैं, मोलैरिटी इज द बेटर कंसनट्रेशन टर्म, और वी कैन से मोलैरिटी शुड बी द बेटर कंसनट्रेशन टर्म, बट इन एक्चुअल मोलैलिटी इज द बेटर कंसनट्रेशन टर्म। इज दिस क्लीयर? चलो, तो ये अपने कोले सीगा मोलैलिटी ते मोलैरिटी दा कॉन्सैप्ट। हुण आपां अगला कॉन्सैप्ट डिस्कस करांगे, दैट इज द नॉर्मैलिटी। अगली कंसंट्रेशन टर्म जो है दैट इज नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी, ठीक है। नॉर्मैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। नॉर्मैलिटी नूं आपां कैपिटल N दे नाल रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है। तो जिहड़ी नॉर्मैलिटी हुंदी है इनू बहुत ध्यान नाल समझांगे, क्योंकि थोड़ा जा ये जिहड़ा नॉर्मैलिटी का कॉन्सैप्ट है ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि ये एक डिफरेंट टर्म यूज होंदी है। सो फर्स्ट वी राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द नॉर्मैलिटी कि नॉर्मैलिटी एक्चुअल च है कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, the number of gram equivalents of the solute, we are talking about the solute only, of the solute, चाहे वो number of moles ने चाहे वो gram equivalents ने, आपां डील किहदे नाल कर रहे हैं? solute दे नाल, क्योंकि solute नूं ही dissolve किया जाता है solution दे विच। ठीक है। तो solute दे जिहड़े gram equivalents होणगे, the number of gram equivalents of the solute dissolved per liter of the solution is known as normality। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ कहने आगे? normality, which is represented by the capital N। ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ capital N ਨਾਲ represent ਕਰਦੇ ਆ। now if we write it mathematically, N will be equals to number of gram equivalents। लेट मी राइट इट इन द शॉर्ट फॉर्म। ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करांगे ये। ठीक, आप ऊपर लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो दिस इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। जदों भी मैं सॉल्यूशन SOL के ऊपर N पानी है तो दैट मीनस कि सॉल्यूशन की गल कर रहे हैं। इफ वी आर टेकिंग दिस इन द लीटर्स देन द फॉर्मूला विल बी दिस ओनली, बट इफ वी चेंज द यूनिट्स ऑफ द वॉल्यूम द इक्वेशन विल बी the number of gram equivalents divided by volume of the solution in ml then multiply by 1000। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 1000 नाल मल्टीप्लाई ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। ठीक है। यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नॉर्मैलिटी। नाउ हुण इत्थे दिक्कत कित्थे आउंदी है कि जिहड़ा मोल्स नाल तां आपां डिस्कस कर चुके हैं, मोल्स नाल आपां बहुत खेड चुके हैं। ठीक है। बट आप कदे भी आह वर्ड नहीं सुनिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ग्राम इक्विवेलेंट्स की हुंदे ने? तो इत्थे अपने कोले पहला कॉन्सैप्ट की दा समझांगे? ग्राम इक्विवेलेंट दा समझांगे। ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स नू कैलकुलेट करन दा फॉर्मूला की होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल्स टू गिवन मास ओवर इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास। ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। हर चीज़ एक नवी टर्म ਨੂੰ एक्सप्लेन करती है, हर चीज़ नवी टर्म ਨੂੰ लेके आती है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स काहदे बराबर होंगे आ? गिवन मास ओवर इक्विवेलेंट मास। ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इक्विवेलेंट मास? आप ऑलरेडी मॉलिक्यूलर मास बारे तो पढ़िया है, बट इक्विवेलेंट मास बारे नहीं पढ़िया।
ਤਾਂ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਟ ਮਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? It is equals to molecular mass, or we can say molar mass, divided by n factor. n factor. Now what is this n factor? ये n factor की है, ठीक है? तो अगे दी अगे एक एक नवी टर्म अपने को आई जा रही है. Now what is the meaning of this n factor? n factor की चीज़ हुंदी है रजे? n factor हुंदा है अगर आप डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्यूट, केड़ा सॉल्यूट लै रहे हैं उहदे ते डिपेंड करता है. मान लो अपने कोले सॉल्यूट की हैगा, कोई एसिड है, ठीक है, तो उहदा n फैक्टर उहदी बेसिसिटी होगी हमेशा. बेसिसिटी का मतलब की हुंदा है कि कोई भी एसिड किन्ने H पॉजिटिव आयन लूज कर सकता है इन वाटर, पानी दे विच किन्ने H पॉजिटिव आयन दिंदा है. जे अपने कोले कोई बेस है तो उहदी की होगी? एसिडिटी, ठीक है. जे अपने कोले कोई इलैक्ट्रोलाइट है तो उहदे च आपां देखदे हां नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन लूज और गेन, किन्ने इलैक्ट्रॉन लूज गेन करते, ठीक है. जे अपने कोले कोई एटम है या एलीमेंट आ, उहदा आपां की देखदे हां? वैलेंसी, भी उहदी वैलेंसी किन्नी है. तो इन्हां चार चीज़ों तो बिना थोनू एन फैक्टर दे विच कुछ भी नहीं मिलूगा. एन फैक्टर हमेशा की चीज़ होंदी है? या तो कोई एसिड होगा, या कोई बेस होगा, या कोई इलैक्ट्रोलाइट होगा, या फिर कोई एटम होगा. अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल अगर आप इहदी एग्जाम्पल करिए, मान लो अपने कोले सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4. अंडरस्टूड? ठीक है. H2SO4 इज द सल्फ्यूरिक एसिड. हुण ये एक एसिड है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ एसिड बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रोंग एसिड. ये बहुत स्ट्रोंग एसिड है. जदों इहनूं आपां तोड़दे हां तो इट विल बी ब्रेकिंग लाइक दिस, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है. हुण अपने कोले किन्ने H पॉजिटिव आयन रिलीज होए? 2 H पॉजिटिव आयन जिहड़े हैगे आ ओह रिलीज होए. क्लीयर? तो ये 2 H पॉजिटिव आयन का मतलब की हो गया कि इस एसिड की बेसिसिटी कितनी आ? 2 है. तो हुण जे आपां मान लो सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास कढना होवे तो वो कितना होगा? तो सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास कढन दे लई आपां की करांगे? इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास पहला फाइंड आउट करांगे. तो सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल्स टू H2SO4. हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना हुंदा? 1. मल्टीप्लाई कर देंगे 2 नाल क्योंकि 2 दिते हुए हैं. प्लस सल्फर का एक का मास कितना हुंदा? 32. प्लस ऑक्सीजन का एक का मास हुंदा 16. देन मल्टीप्लाई बाय 4. देन व्हाट विल वी गेट? यहाँ इत्थे की आऊगा अपने कोले? 2 + 32 + 64, दिस विल बी 98 ग्राम्स. तो ये अपने कोले किन्ने ग्राम्स आ गए? 98 ग्राम्स. दैट मीनस मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इज 98. तो एन फैक्टर आपां कितना कैलकुलेट किया? फ्रॉम दिस 2, ठीक है. तो एन फैक्टर अपने कोले कितना है? 2 है. दैट मीनस व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड? इट विल बी 49 ग्राम्स, ठीक है. 49 ग्राम्स जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास है. तुसी किसी भी मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो बाय दिस मैथड. अंडरस्टूड? तो हुण जे आपां इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लिया तो आपां बहुत ईजीली इहदे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं व्हेन वी हैव गिवन द मास, ठीक है. जदों अपने कोले मास दिता होगा तो आपां बहुत ईजीली उहदे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. वी विल पुट दैट वैल्यू इन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नॉर्मैलिटी, ठीक है. तो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सैप्ट ऑफ द नॉर्मैलिटी. ये नॉर्मैलिटी का ओवरऑल कॉन्सैप्ट है. नैक्सट हैगा इस तो बाद आपां जो डिस्कस करांगे दैट इज द मोल फ्रैक्शन. अगली कंसनट्रेशन टर्म जो अपने कोल हैगी आ वो की है? मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन दे विच आपां पहला एक वर्ड मोल नूं तां आपां ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मोल की हुंदा है. तो जे आपां फ्रैक्शन का मतलब देखिए, फ्रैक्शन का मतलब हुंदा किन्नवां हिस्सा, एक चीज़ का किन्नवां हिस्सा, दैट इज नोन एज द फ्रैक्शन. तो मोल फ्रैक्शन का मतलब की हो गया कि मोल का किन्ना हिस्सा, मोल फ्रैक्शन, ठीक है जी. तो मोल का किन्ना हिस्सा, तो ਇਹਦਾ मतलब की होया? मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, दिस एक थोड़ा जा टेढ़ा x हुंदा जिन्हों आपां काई कहने आ, CHI. दिस इज द सिंबल फॉर द मोल फ्रैक्शन, ठीक है. तो मोल फ्रैक्शन जिहड़ी हैगी है राजे, किसी भी सॉल्यूशन दे विच 2 कंपोनेंट्स हुंदे हैं. सॉल्यूशन दे विच
दो कंपोनेंट्स है, एक की हैगा सॉल्यूट ते एक की हैगा सॉल्वेंट। अंडरस्टूड। तो सॉल्यूट का जिहड़ा फ्रैक्शन हिस्सा तो सॉल्यूट का भी होगा ते सॉल्वेंट का भी होगा। हुण आपां देखना की है कि मोल फ्रैक्शन का मतलब इत्थे किवें इंप्लीमेंट हुंदा है। तो किसी भी सॉल्यूशन दे विच सॉल्यूट दे किन्ने मोल्स ने ते सॉल्वेंट दे किन्ने मोल्स ने, उहनूं आपां की कह दिंदे आ, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्यूशन। अंडरस्टूड। तो सॉल्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय B, दैट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटेड एज काई B एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज काई A। ठीक है। तो काई B कादे बराबर होगा, जिन्ने नंबर ऑफ मोल्स B दे ने यानी कि सॉल्यूट दे ने ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ते टोटल नंबर ऑफ मोल्स कादे बराबर होणगे, जिन्ने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अंडरस्टूड। नैक्सट आ जांदा अपने कोले मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट विल बी number of moles of solvent over total number of moles which are Na plus Nb। इसे तरीके नाल आपां फ्रैक्शन कढदे आ ना, मान लो आपां एक चॉकलेट नूं 10 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਆਇਆ, 1/10, 1/10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਆਇਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਓਵਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਟੋਟਲ ਹਿੱਸੇ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਫਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। सिमिलरली सॉल्यूट को किन्ने मोल्स आए ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दिस विल बी गिवन एज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट देगा। अंडरस्टूड। हुण ये अपने कोले फॉर्मूला हो गया कैलकुलेट करन दा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नाउ जे आपां हरेक बंदा जिन्हों आपां 1/10 1/10 10 जणियां दे विच डिवाइड कीता, जे आपां इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़ दिए तो अपने कोले की मिलूगा, 10 बारी जोड़ दिए तो वी विल गेट द 1। दैट मीनस जिन्नियां भी फ्रैक्शनस नूं आपां तोड़ांगे, एक दे जिन्ने हिस्से कीते गए ने, जदों सारे हिस्सिਆਂ ਨੂੰ जोड़ दांगे तो इक्को ही बनूगा। ठीक है। तो काई B प्लस काई A इट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। जे अपने कोले किसी एक दी मोल फ्रैक्शन पता है तो वी कैन फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द अनदर कंपोनेंट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है। दैट मीन्स काई B विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस काई A और काई A इज इक्वल्स टू 1 माइनस काई B। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। ये अपनी चौथी कंसनट्रेशन टर्म सी, दैट इज द मोल फ्रैक्शन। अंडरस्टूड। नैक्सट आउंदा रजे अपने कोले इस तो अगला जो आपां डिस्कस करना है, दैट इज द कुछ छोटिया छोटिया कंसनट्रेशन टर्म्स ने, वो केड़ियां ने वो देखते हैं। ठीक है। सब तो पहली आ जाती है जिन्होंने आप 5th नंबर रिप्रजेंट करते हैं, दैट इज द मास बाय मास परसेंट। मास बाय मास परसेंट। हुण इहदा मतलब की होया, इहनूं इस तरीके नाल भी लिख दिंदे है, इहनूं M बाय M भी लिख दिंदे है, और ठीक है, और बाय मास परसेंट भी लिख दिंदे है। तो इहनूं लिखण दे कई तरीके ने, मतलब तिन्नां चीज़ां दा इक्को ही है। ठीक है। तो मास बाय मास परसेंट का मतलब की होया, इहदा मतलब ये होया रजे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ओवर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज हियर। आपां इत्थे परसेंटेज की गल कर रहे हैं, कोई लीटर्स कोई मिलीलीटर्स कुछ नहीं है। ठीक है। तो मास बाय मास परसेंट का मतलब की हो गया, इत्थे इहनूं ऐ भी लिख सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। ये हो गया अपने कोले बाय मास परसेंटेज या फिर मास बाय मास परसेंट का मतलब। अगली कंसनट्रेशन टर्म की आ जाती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये भी अंडरस्टूड है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम नो V बाय V भी लिख सकते हैं और बाय वॉल्यूम भी लिख सकते हैं कला। ठीक। तो ये अपने कोले की आ जाऊगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। क्योंकि आप इत्थे अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज। ठीक है। तो ये अपने कोले बन गया। नैक्सट अपने कोले अगली कंसनट्रेशन टर्म की आती है, दैट इज द मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है। तो यदा मतलब की होया कि मास ऑफ द सॉल्यूट
over volume of the solution multiply by 100 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ कहने ਆ mass by volume percent। सो ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੀਗੀਆਂ these are the very simple, ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ mass by mass यानी कि mass divided by mass। बस ये ध्यान रखना है कि किहदा मास है, उपरला सॉल्यूट का नीचे वाला सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूट नूं ही आपां डिसोल्व करते हैं सॉल्यूशन च, ठीक है। तो ये अपने कोले तीन कंसनट्रेशन टर्म्स जिहड़ियां सीगियां ये होर ने। इस तो इलावा एक कंसनट्रेशन टर्म होर हुंदी है दैट इज नोन एज द पार्ट्स पर मिलियन, जिन्हों PPM भी कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। द 8th वन इज पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन और PPM इनू किवें एक्सप्लेन करोगे, इहदा की मतलब हुंदा है। PPM जिहड़ा चीज़ हुंदी है राजे, ये कुछ नहीं हैगा जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बिल्कुल सेम है, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6, क्योंकि इत्थे आपां हुण परसेंटेज की गल नहीं कर रहे, इत्थे आपां मिलियन की गल कर रहे हैं, तो मिलियन का मतलब की हुंदा 10 की पावर 6। तो बिल्कुल सेम है, अमाउंट लिख लो मास लिख लो, इक्को ही गल है, अमाउंट ते मास दे विच कोई फर्क नहीं हुंदा। इस करके PPM इज ऑल्सो इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ओवर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6। So this is the formula to calculate the PPM, parts per million। So these are the concentration terms जिहदे विचों थोनों क्वेश्चन च पेपर जो पेपर दे विच जिहड़ा क्वेश्चन है वो पूछा जाऊगा, ठीक है। इहदे तो इलावा कोई होर कंसनट्रेशन टर्म जो हैगी वो थोनों नहीं आऊगी। एक चीज़ का होर ध्यान रखियो, अपने कोले दो इक्वेशनस हुंदियां ने जिन्हों आपां मोलैरिटी इक्वेशन एंड नॉर्मैलिटी इक्वेशन कहने आ। हुण अपने कोले गल आउंदी है कि मोलैरिटी इक्वेशन की हुंदी है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मोलैरिटी इक्वेशन। तो ये अपने कोले दो तरह की हुंदी है, ठीक है। मोलैरिटी इक्वेशन की चीज़ होगी, वो हुंदी है राजे अपने कोले फर्स्ट इज़ द M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, ठीक है। तो इनू आपां लिखांगे M1V1 की है, M2V2 की है, उन्होंने एक्सप्लेन करते हैं। M1 की है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन दी मोलैरिटी, ठीक है। सेकंड V1 की है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन दा वॉल्यूम। M2 की है मोलैरिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, दूसरे सॉल्यूशन दी मोलैरिटी, ते V2 की है वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। गॉट इट, ठीक है। तो ये अपने को जी टर्मिनोलॉजी है वो ये है कि आप सिंबल्स किनू किनू किवें किवें प्रोवाइड किए हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन होंदी है अपने को M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, जो थोड़े को दो यह जे सॉल्यूशनस नू मिक्स किया गया है जेडे कि रिएक्टिव मिक्सचर नहीं होंगे। रिएक्टिव मिक्सचर का मतलब की है कि जे उन्होंने आप मिक्स कर भी दईए तो अपने को कोई बिल्कुल नवा प्रोडक्ट जोड़ा हैगा वो प्रोड्यूस ना होवे, उदों आप ये वाली इक्वेशन नू फॉलो करांगे। अगली जी इक्वेशन है वो की होंदी है दैट इज द M3V3 इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2। तो ये अपने कोले आ गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। हुण ये इक्वेशन किहदे बेस ते हुंदी है, सिर्फ उन्हां सॉल्यूशनस लई हुंदी है जिहड़े कि रिएक्टिव मिक्सचर हुंदे है, यानी कि एक दूजे नाल रिएक्ट करन तो बाद कोई ना कोई एक नवी चीज़ बना दिंदे है जिहदी मोलैरिटी भी डिफरेंट है ते जिहदा वॉल्यूम भी की है डिफरेंट है, ठीक है। सो दीज आर द टू मोलैरिटी इक्वेशनस जिन्हां नूं आपां स्टडी करदे हां। सिमिलरली अपने कोले की हुंदियां ने नॉर्मैलिटी इक्वेशनस। नॉर्मैलिटी इक्वेशन ते मोलैरिटी इक्वेशन च कुछ फर्क नहीं हैगा, बस उत्थे M की थां ते की आ जाऊगा N आ जाऊगा। N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2 एंड N3V3 इज इक्वल्स टू N1V1 प्लस N2V2। दैट्स इट, नथिंग इज चेंज, ठीक है। बाकी कुछ चेंज नहीं है, बेसिक बिल्कुल सेम है, जस्ट इत्थे मोलैरिटी की थां ते की आ जाऊगा नॉर्मैलिटी। गॉट इट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसनट्रेशन टर्म्स ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन दे विच कितनियां कंसनट्रेशन टर्म्स आ सकदियां ने, इहनूं आपां डिस्कस कीता है अज दे लैक्चर दे विच, ठीक है। तो इस तो बाद जिहड़ा आपां नैक्सट लैक्चर दे विच करांगे दैट इज द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दैट इज फ्रॉम द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट उस टाइम तक
इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਉਂਗੀ। ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਫॉर ਟੁਡੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।